In Matthew 8th chapter, मत्ती 8वां अध्याय we see in verse 16 and 17, 16वां और 17वां पद, when the even was come, जब संध्या हुई they brought unto him many that were possessed with devil, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, and he cast the spirits with his word, cast out the spirits with his word, उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया and healed all that were sick, और सब बीमारों को चंगा किया, that it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो, saying, himself took our infirmities उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया and bare our sickness. और हमारी बीमारियों को उठा लिया। I remember a retreat center where, as the main speaker in the North American continent, I was put in a small cabin on which was written the words infirmary, means hospital. मुझे याद है उत्तर अमेरिका में एक रिट्रीट सेंटर में जहाँ मैं मुख्य वक्ता था, वहाँ पे मुझे एक ऐसे कमरे में रोका गया, वहाँ पे बाहर उसके अस्पताल शब्द लिखा गया था। Well, I was the patient there. मैं वहाँ एक रोगी था। No, I was a speaker and that's all the place they found. नहीं, मैं तो उपदेशक था, लेकिन उन्हें वही कमरा मिला। But लेकिन they were probably saying more than they really meant. लेकिन शायद वो ऐसा कह रहे थे, उनका मतलब ये नहीं था। Because, क्योंकि you know, after all of us have some infirmities, something which is out of balance. क्योंकि हम में से हर एक के शरीर में, हम में से हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है जो कि संपूर्णता से दूर है। And some people are not conscious of their infirmities. लेकिन कुछ लोगों को अपनी उन दुर्बलताओं के बारे में पता नहीं Some होता। people are foolhardy. They feel I'm all right when they're not all right. कुछ लोग तो कुछ कठोर होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे में तो कोई कमजोरी है ही नहीं। But लेकिन as long as we are in this body, जब तक हम इस शरीर में हैं, we are subject to infections, sicknesses, तो हमें बीमारी और कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, certain pressures and tensions तनाव हो that सकता है, produce psychosomatic diseases. जिससे कि मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। But what are we told here? लेकिन हमें यहाँ क्या बताया गया? We are told that all our infirmities हमारी हर एक दुर्बलताओं को, and all our sicknesses हमारी हर एक बीमारियों को were borne by the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। 700 years before he was born, उनके जन्म से 700 वर्ष पहले ही Isaiah the prophet prophesied, यशायाह नबी ने उनकी भविष्यवाणी की थी, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. हमारे दुख और कष्टों को उसने अपने ऊपर ले लिया, But we esteemed him stricken of God and afflicted. लेकिन हमने उसे परमेश्वर का मारा हुआ समझा। You see, we did not quite understand हमें that समझ he नहीं आया bore our sorrows and our infirmities. हमने इस बात को नहीं समझा कि उसने हमारे कष्टों, वेदनाओं को, दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। Is there anybody in the whole world that can bear your sorrows and all your infirmities? क्या इस दुनिया में कोई है जो आपकी कमजोरियों को, आपके दुखों को, कष्टों को अपने ऊपर ले ले? I am very surprised at the idea that people have of God. लोगों का परमेश्वर के बारे में क्या ख्याल, उसे देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। God
is मैं love. ही सत्य हूँ। Now, friend, प्यारे दोस्तों, when people say they believe in the Lord Jesus, जब लोग कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, truth must flow from them. तो उनके भीतर से सत्य आना चाहिए। You all know how normally, naturally, freely lies, untruth, evil thoughts flowed from you. इस बात को हम जानते हैं कि कितने ही सरलता से, आसानी से झूठ, दुष्टता, गलत बातें हमारे अंदर से निकलती हैं। You know that flood of wickedness दुष्टता का that सैलाब flowed from your hearts. जो आपके हृदय से बहता है। But now, लेकिन अब when you come to the Lord Jesus, जब प्रभु यीशु के पास आप आते हैं, what happened? क्या होता है? Are you kind of neutralized? You come to a state where you say, oh, I am holding myself, that the flood of untruth should not flow from me anymore? तो आप क्या ऐसे बन जाते हैं कि मैं अपने अंदर हर एक झूठ, हर एक दुष्टता को रोक के रहा हूं ताकि वो मेरे अंदर से ना निकले? That is not conversion. ये हृदय परिवर्तन नहीं है, मन फिराव नहीं। Conversion जो हृदय परिवर्तन है, brings forth a flow of truth from your heart. वो हमारे हृदय के भीतर से सत्य की नदी को बहाता है। So when I see people say, oh, I'm filled with the Holy Spirit, जब लोग कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ and speak lies, और झूठ बोलते हैं, I know it is not the Holy Spirit, मैं समझ जाता हूँ कि ये पवित्र आत्मा नहीं, but it is the devil. लेकिन शैतान है। Listen, सुनिए, the Spirit of God is the Spirit of truth. परमेश्वर की आत्मा सत्य की आत्मा है, And when He is come, और जब वो आता है, He will lead you into all truth. हर एक सत्य में हमारी अगुवाई करता है। See, I don't believe in a conversion that wants half truth. मैं ऐसे मन फिराव में विश्वास नहीं करता जिसे आधा सत्य चाहिए। Just now my son was preaching about मेरे बेटे प्रचार कर the रहे थे, secret of the Lord is with them that fear Him. परमेश्वर के भेद को परमेश्वर के डरवैये ही जानते हैं। You know, everywhere आप जानते हैं चारों तरफ we are, science is trying to unravel the secrets behind the pathology, the where and why of certain diseases. जो विज्ञान है वो रोगों के पीछे कहाँ से वो आते हैं, कैसे उनका उपचार करने की चीज की खोज में लगा हुआ है। And immense sums of money are being expended to discover these secrets. और इन रोगों का पता लगाने के लिए बहुत सा पैसा खर्च किया जाता है। But लेकिन what is the big revelation of God's secret? परमेश्वर का जो बड़ा रहस्य है वो क्या है? In Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह में, here is your sin bearer, जो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने वाला परमेश्वर, and he who bore your infirmities हमारी दुर्बलताओं and को, sorrow. हमारे दुखों को अपने ऊपर उठाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। But लेकिन look at the state of Christians today. आजकल मसीहों की हालत को आप देखिए, They cannot show Jesus. प्रभु यीशु को वो दिखा नहीं पाते हैं। They have some kind of religion केवल एक धर्म को लेकर वो चलते हैं and they're satisfied. और उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। Listen, सुनिए, when you begin to know the secrets of God, जब आप परमेश्वर के भेदों को आप जानने शुरू करते you हैं, will become hungry for more. आप और बातों के लिए आप भूखे और प्यासे हो जाएंगे, You will get more and more humble. आप और अधिक नम्र हो जाएंगे And you will become more and more childlike. और छोटे बालकों के समान होते जाएंगे। All these old childish manifestations, fightings, quarrelings, suspicions, fears, all that, those things are gone. और छोटे बच्चों के समान मैं तू लड़ाइयाँ, बड़ापन और ये सारी दुविधाएं, You डर know, हट I am जाएंगे। superior, I am greater, I am the greatest. अरे मैं ही बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सारी बातें हट जाएंगी। All right, if you want to live in the kindergarten all your life, अगर आप पूरे जीवन भर छोटी किंडरगार्टन में जीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, then that's how you will talk.
तो आप ऐसे ही बातें करेंगे। But when you begin to know the living God, लेकिन आप जब जीवते परमेश्वर को जानने लगते you हैं, will never talk like that. आप कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे। You will say, I'm lesser than the least of all saints. आप कहेंगे मैं सभी संतों में सबसे छोटा हूँ। That is what St. Paul said. और यही संत पौलुस ने कहा। And if you ask me, अगर आप मुझसे पूछें, I simply don't know what to say. मुझे नहीं पता कि मैं अपने बारे में क्या कहूँ। If St. Paul was lesser than the least of all saints, अगर संत पौलुस सबसे छोटों में सबसे छोटा था, well, how can I describe myself? तो मैं अपने आप को कैसे बयान कर सकता हूँ? Far lesser than that. उससे भी बहुत ही छोटा, Immeasurably lesser than that. उससे छोटा जिसे आप नाप नहीं सकते। Then, फिर would there be room for pride? तब क्या घमंड के लिए कोई जगह बचेगी? No. नहीं। You would love to wash your brother's feet. आप अपने भाई के पाँव को धोने में आप खुश होंगे। Now, my dear friend, मेरे प्यारे लोगों, my heart is always moved at this scripture. परमेश्वर के वचन को देख के मैं हमेशा मेरा हृदय भर जाता है। When the even was come, जब शाम आई, all those that were sick were laid before him. जो भी सब बीमार थे उसके पास लाए गए। When I look at my mail, जब मैं अपने ईमेल को देखता हूँ, I see sicknesses and sorrows and debts. उसमें मैं बीमारियों को, दुखों को, कर्जों को, सताव को देखता हूँ, Oppression. दबाव को, सताव को देखता हूँ, And people are simply groaning. और कैसे लोग Worse कराह रहे हैं, than any slavery. किसी गुलाम की तरह वो कैसे कराह रहे हैं। And many of these things I discover are a result of their own doing. और मुझे ऐसा जान पड़ता है कि ये सारी चीज़ें उन्हीं के द्वारा की गई गलतियों का परिणाम है। You can never eliminate this natural law. What you sow, you reap. आप इस प्राकृतिक नियम से बच नहीं सकते जो बताता है कि जो आप बोओगे वही आप काटोगे। What you sow, you reap. जो आप बोओगे उसी को आप काटोगे। What you sow as a teenager, you will reap one day. अपनी किशोर अवस्था में जो बोओगे उसको आप एक दिन काटोगे। What you sow as a young mother, you will reap one day. एक जवान माँ के नाते जो आप बोओगे उसको आप काटोगे। What you sow before you were a bride, you will reap one day. पत्नी बनने से पहले जो कुछ आपने बोया उसे आप एक दिन काटोगे। And so we see around us a sea of suffering. और इसलिए अपने चारों तरफ हम दुखों और कष्टों का एक सैलाब देखते हैं। Modern life seems to gloss over this with excellent paint. आजकल की आधुनिक जीवन शैली इन सारी बातों के ऊपर एक बड़ा ही सुंदर सा पेंट लगा देती है, लेकिन No paint can cover the infirmities and the sorrows of men. लेकिन कोई भी पेंट इंसान के दुखों और दर्दों के ऊपर नकाब नहीं लगा सकता। No politician can solve these infirmities. कोई भी नेता इन दुर्बलताओं और कमजोरियों का उपचार नहीं दे सकता। But लेकिन what did the Lord Jesus do? प्रभु यीशु ने क्या किया? He cast out the spirits with his word. अपने वचन से उन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला And he healed all that were sick. और जो सब बीमार थे उन्हें चंगा किया। I do not know how, besides you, how many will be hearing this message. मुझे नहीं पता कि आपके अलावा कितने लोग इस संदेश को सुन रहे होंगे, But लेकिन they may say, वो कह सकते हैं, is God able to heal my sickness? क्या परमेश्वर मेरे रोग को चंगा कर सकता है? No doctor could do it. कोई डॉक्टर मेरे रोग का उपचार ना कर सका। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there is no sickness, no sorrow, no problem which the Lord Jesus is not able to deal with. कोई ऐसी बीमारी, दुख, परेशानी नहीं जिसका उपचार प्रभु यीशु ना कर सकें।
Don't think people like me can deal with all your problems. ऐसा मत सोचिए कि मेरे जैसा इंसान आपकी समस्या का इलाज दे सकता No, है। no, no. नहीं नहीं, Can't you see I'm but a man? मैं तो एक Only इंसान a हूँ। man. मैं तो केवल एक इंसान हूँ। If you just stop my breathing for a little while, I'll be dead. अगर मेरी सांस को रोक दो तो मैं मर जाऊंगा। I'm a man. मैं तो एक इंसान मात्र हूँ। Jesus प्रभु यीशु मसीह bore all our sin, हमारे हर एक पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, all our infirmities. हमारी हर एक दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। Now I want to tell all the audiences anywhere in the world, दुनिया के बैठे हर एक लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, He bore our transgression. प्रभु यीशु ने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। He was bruised for my iniquity. मेरे अपराधों के कारण वो कुचला गया। The chastisement of my that I might have peace और मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, fell upon him, उसी के ऊपर ताड़ना पड़ी, and with his stripes और उसके कोड़े खाने से we are healed. हम चंगे हो गए। What a marvelous truth. कितना अद्भुत सत्य ये है। You want to demonstrate it for yourself? अपने आप को इस बात को दिखाना चाहते हैं? Then देखिए, put forth your heart and your hand and touch the Lord Jesus. अपने हाथ और अपने हृदय से प्रभु यीशु को छूइए। I am ashamed to say मुझे बड़ी ही there शर्मिंदगी are होती है। people who try to touch me. लोग हैं जो मुझे छूना चाहते हैं। It's a foolish thing to do. ये तो एक मूर्खता भरी बात है। I am only a man. मैं तो केवल एक इंसान हूँ, But touch the Lord Jesus लेकिन प्रभु यीशु को छूइए wherever you may be. जहाँ कहीं आप हो। He bore your transgression. आपके अपराधों को उसने अपने ऊपर उठा He लिया। died for your sin. वो आपके पापों के लिए मारा गया। He knows your sorrow. आपके दुखों को वो जानता है। My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, some of us rush to people. हमें से कुछ लोग लोगों के पास दौड़ते हैं। Listen, सुनिए, don't offer money. पैसे मत दीजिए। Money cannot solve any problem. पैसों से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। Don't think because you give some money, आप मत सोचे कि आप पैसा देते हैं, God will have special favor. परमेश्वर आप पर कृपा दृष्टि देगा। No, no, no. नहीं नहीं, You can't buy the favor of God with money. परमेश्वर की कृपा को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। Money has nothing to do with religion. पैसे का धर्म से कोई संबंध नहीं। This commercialization that has invaded many religions, including Christianity, और जो ये व्यवसाय है बहुत से धर्मों में, यहाँ तक कि मसीहत में भी आ चुका है, is a device of the devil. ये शैतान की एक युक्ति है। It destroys ये नाश करती है, holiness. पवित्रता को नाश करती है, It destroys your spiritual power. आत्मिक शक्तियों को ये नाश करती है। Actually, लेकिन असल में it demolishes the rule of money in your heart. असल में परमेश्वर की सच्चाई हमारे हृदय में हर एक पैसे के मोह को खत्म What करती can है। money do? पैसा क्या कर सकता है? It can build a concrete structure. पत्थर की इमारतें बना सकता है। You have an infirmity, you're suffering, he's touched by that. जब आप कष्टों में होते हैं, निर्बलताओं में होते हैं, उसे देख के प्रभु व्याकुल होता है। What a high priest. कैसा हमारा महायाजक है, What a savior. कैसा उद्धार करता है हमारा, He sees me. जो हमें देखता है, He knows me. जो मुझे जानता है He knows what a weak character. कि मैं किस प्रकार से एक कमजोर इंसान हूँ, How prone to fall. जो कभी भी गिर सकता है। And he's touched by my state. और मेरी उस हालत को देख के वो तरस खाता है, He says, I came to lift you. और वो कहता है कि मैं तुझे उठाने के लिए I आया, came to bear this infirmity of yours. तेरी इस कमजोरी को अपने ऊपर लेने के लिए मैं आया। I came to bear you this crookedness and perversity in your nature. और तेरे स्वभाव में जो दुष्टता है, गलत चीज है, उसे मैं हटाने के लिए, अपने ऊपर लेने के लिए आया। How amazing. कितनी अद्भुत बात है।
but was in all points tempted like as we are tempted, जो स्वयं हमारे समान हर एक बातों में परखा गया, yet without sin. फिर भी निष्पाप निकला। So he knows how to keep you from sin. इसलिए वो जानता है कि हमें कैसे पाप से बचाया जाए। He is touched by your present circumstance, हमारी हालत को देख के वो तरस खाता है, stress, हमारे तनाव को देखकर, sorrow, हमारे दुख को देखकर, sickness, हमारी बीमारी को देखकर, and he bore it all और उसने इन सब को अपने ऊपर ले लिया। on his sinless body. अपने निष्पाप शरीर पर उसने अपने ऊपर My ले लिया। dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, don't let this be some distant fact. इसको कोई ऐसी अलग की बात मत समझें। Live it every moment. हर एक पल इस सच्चाई में आप जिए। He bore my transgression. उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले He लिया, bore my infirmity. मेरी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। He is touched by this perverse nature that he sees in me. और उसने मेरे इस दुष्ट और हटिल स्वभाव के ऊपर तरस And खाया, with his stripes I am healed. और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। May God help us परमेश्वर हमारी सहायता करे and touch everyone और हम में से हर एक को छुए, because he is touched by you. क्योंकि वो हम पर तरस खाता है। Let us pray. आइए प्रार्थना करें, Let us tell God, आइए परमेश्वर से कहें, Lord Jesus, प्रभु यीशु, you're touched by my infirmity, मेरी दुर्बलताओं कमजोरियों को देख के आपने my तरस खाया, present stress, my present sorrow. मेरी अभी की दुख को, कष्टों को, हालत को देख के आपने तरस खाया। You know all about it. आप सब बातों को जानते हैं। You bore my transgression. मेरे अपराधों को अपने ऊपर लिया, You carried my sorrow. मेरे दुखों को आपने अपने ऊपर उठाया, And you were stricken और आपको मारा गया। by my sinfulness. मेरे पापों की वजह से आपको मारा गया। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I trust you. मैं आप पे भरोसा करता हूँ। I don't trust in all my former folly, मैं अपनी पहली मूर्खताओं पर भरोसा नहीं करता, all my idols, मेरी मूर्तियों पर भरोसा नहीं करता, all my other philosophy. दूसरी काल्पनिक बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। You bore my sickness. केवल आपने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर You उठाया, bore my infirmity. मेरी निर्बलताओं को आपने अपने ऊपर लिया। Make me a new creation. मुझे एक नई सृष्टि बनाइए, Touch me. मुझे छूइए प्रभु, Make me whole. मुझे संपूर्ण कीजिए। The Lord is listening to your prayer. प्रभु यीशु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। Gracious Father, अनुग्रहकारी पिता, do thou touch everyone who is listening. जो भी सुनते हर एक को आप छूइए, Have mercy. इन पर दया करें। You are touched by our infirmity. हमारी कमजोरियों को देख के आपने तरस खाया। Please go with these dear people कृपया इन प्यारे लोगों के साथ आप जाइए प्रभु, and let them experience the Savior. और आपकी बातों का ये अनुभव कर सकें प्रभु। Hear our prayer हमारी प्रार्थनाओं को सुन, in Jesus' holy name. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, Amen. आमेन।